Is there any other way by which we can calculate the electrode potential of electrode present in a cell? Yes, we can calculate the electrode potential of an electrode using the concentration of a solution in which the electrode is, and for it we will study the Nernst equation. Okay, so good morning students, I am Rajendra Sharma, your chemistry teacher. Today we are going to study about Nernst equation. What is Nernst equation and how we can achieve this formula? Yeah, a formula used for Nernst equation. Let's see. Actually, the electrode potential of an electrode at any concentration with respect of standard hydrogen electrode is calculated as follow. हम यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करके किसी भी इलेक्ट्रोड की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, उसकी हेल्प से यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड करने की कोशिश करेंगे. तो हम मानते हैं सपोज द इलेक्ट्रोड इज Mn2 प्लस, ओके, or the reaction taking place on the electrode is like this. Okay, Mn2 plus gaining n number of electron changes into M. M stands for metal. तो यहाँ पर आपके पास जो metal ion है, after gaining n number of electron, it's changing into metal. So this is an example of reduction reaction. And if we calculate the electrode potential for this reduction reaction, so we can write it like this. This is the formula which can be used to calculate the reduction potential of an electrode using the concentration. So here we have the electrode potential of an electrode. This is standard electrode potential, and R here stands for a constant, and T is temperature and number of electron transferred. F is a Faraday constant. M again is a concentration of metal ion in metal solid, and this is concentration of metal ion. Okay, and as we know that the concentration of solid is always considered to be unit, so we know that this metal is in solid state, so its concentration will be considered as 1. So therefore we will place 1 here, and rest of the things we have gas constant, that is 8.314, and Faraday constant 96487, and approx value we take 96500 for convenience of calculation, and temperature we will take 298 Kelvin, and N here stands for number of electron transferred during the reaction. Okay, and Mn plus is the concentration of electrolyte in mole per liter. If we put all these values, if we substitute all these values using the given data, so we will obtain this formula, and we calculate this numbers, then we will get 0.059. So here by using this formula we can calculate the electrode potential of any electrode dipped in a solution of Mn plus concentration. Okay, so here this is the electrode potential of electrode, दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और बाकी हम यहाँ पर बात कर ही चुके हैं. ठीक है, वन मोर थिंग वी हैव डन हियर इज कि यहाँ पर देखो आपके पास Ln है. ठीक है, Ln इज अ नेचुरल लॉग, और हमने जब Ln को यहाँ पर रिप्लेस किया है, तो Ln जो है उसको ध्यान रखें, रिप्लेस करते हैं हम किससे, 2.303. यहाँ मैं शो कर देता हूँ इसको कि Ln जो है इट इज इक्वल्स टू 2.303 10 बेस लॉग. ठीक है, इसके इक्वल होता है ये. तो यहाँ पर आप देखो 2.303 एंड लॉग, ये आपने किसकी जगह लिखा है, इट वी हैव यूज्ड इट इन प्लेस ऑफ नेचुरल लॉग. इसको हमने नेचुरल लॉग की जगह ये काम में लिया है, और इस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई है. और बिल्कुल एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पर हमारे पास सिंबल जो है वो माइनस का साइन है, नेगेटिव साइन है. अब अगर मैं इसको पॉजिटिव करता हूं तो यहाँ लॉग जो है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि माइनस लॉग ए अपॉन बी जो है उसे आप लॉग बी अपॉन ए लिख सकते हैं. अगर उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो यहाँ एम एन प्लस जो कि अपॉन में है वो ऊपर चला जाएगा, तो इट विल बी लाइक दिस, इस तरह से दिखाई देगा वो में. तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड नर्स्ट इक्वेशन. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड नर्स्ट इक्वेशन.
तो नर्व्स इक्वेशन को अगर हम डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो रिलेशन बताती है इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड नर्व्स इक्वेशन। ये इक्वेशन नर्व्स ने दी थी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नर्व्स इक्वेशन। अब ये तो एक ध्यान रखिए सिंबॉलिक रिएक्शन है, इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी इलेक्ट्रोड। जैसे अगर इस इक्वेशन को मैं कॉपर के लिए काम में लेता हूं कैथोड की फॉर्म में, तो इट विल बी लाइक दिस। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कॉपर का, तो ECU2 प्लस Cu, स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो E0Cu2 प्लस Cu, देन सेम वैल्यू। और हमें पता है जब कॉपर जिंक को इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, तो N की जगह हमने 2 यूज में लिया है लॉग, और यहाँ पर कॉपर आयंस जो होंगे वो Cu2 प्लस आयंस होंगे। सिमिलरली अगर आप जिंक के लिए इसको यूज में लेते हैं तो जिंक के लिए ये फॉर्मूला काम में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कॉपर के लिए और जिंक के लिए ध्यान रखें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख दिया है। अब इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या चीज, किसी सेल का पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे कि इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से आप सेल पोटेंशियल किस तरह से फाइंड करेंगे, ओके। Okay students, now we will try to find out the EMF of a cell, okay। एंड हम देख चुके हैं कि किस तरह से हम एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड करते हैं। अब हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को यूज करके किस तरह से आप EMF या सेल पोटेंशियल फाइंड करेंगे किसी भी सेल का, ओके। सो लेट्स सी EMF of the cell, and we know that there is a very simple formula to calculate the EMF of cell is E cell equals to E cathode minus E anode. In case of zinc copper cell, we know that copper is used as cathode and zinc is used as anode. So here copper's electrode potential will be placed in cathode side and zinc from anode side, okay. Now put the value which we obtained in previous video. So you can see that हमने जो वैल्यू ऑब्टेन की थी कॉपर के लिए वो ये थी आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, और जिंक के लिए जो हमने वैल्यू फाइंड की थी वो ये थी, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू मैंने पुट कर दी है। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू, इफ वी रिमूव द ब्रैकेट, अगर हम इस ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, ठीक है, इस ब्रैकेट को रिमूव करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास में जो जैसे ब्रैकेट रिमूव होगा तो ये जो पॉजिटिव साइन है इट विल चेंज इनटू नेगेटिव, बाकी सब एज इट इज लिखा है अपन ने, बाकी कोई चीज नहीं है। अब आप देखिए अगर E0Cu2 प्लस एंड E0Zn2 प्लस Zn, इनको मैं पास लेता हूं तो इनको एक साथ लिख दिया है मैंने। देन आपके पास पॉजिटिव ये है, इसको कॉमन ले लिया है मैंने, एक्चुअली इट इज ये दोनों जगह पर है, इसको मैंने कॉमन ले लिया है। अब आपके पास क्या बचता है, log Cu2 प्लस, ओके, नेगेटिव चार्ज एंड देन नेगेटिव चार्ज देन log Zn2 प्लस आयन, इसको इस तरह लिख दिया आपने। अब इनको मिला के क्या लिख सकते हैं, देखो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और जिंक का जो डिफरेंस है उसी को तो हम E0 सेल कहते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल पोटेंशियल, इसको एज इट इज लिखा है आपने। यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज किया है आपने, फॉर्मूला क्या यूज में लिया है, देखो हमें पता है log A माइनस log B, तो इसको आप लिख सकते हैं log A अपॉन B। तो सिमिलरली यहाँ भी हमने यही किया है, log A माइनस log B है तो यहाँ पर इसको मैंने A अपॉन B लिख दिया है, ठीक है, इसको यहाँ प्लेस कर दिया है हमने। अब इसको प्लेस करने के बाद ये आपके पास जो फॉर्मूला आ गया है ये भी नर्व्स इक्वेशन है, ध्यान रखें, इट इज आल्सो नर्व्स इक्वेशन। नर्व्स इक्वेशन यूज्ड टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल या EMF को कैलकुलेट करने के लिए नर्व्स इक्वेशन है, और जिंक कॉपर का इससे कैलकुलेट कर सकते हैं सेल पोटेंशियल। अब अगर मान लीजिए आपके पास कोई दूसरी रिएक्शन है, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास जिंक या कॉपर ही हो, ठीक है, तो वहां हम इस रिएक्शन को कंसिडर करते हैं, A moles of A, B moles of B react with each other to form C moles of C and D moles of D. In that case, अगर हम इसे नर्व्स इक्वेशन में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे E cell equals to E0 cell plus 0.059 अपॉन N, और ऊपर आप क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट, और नीचे लिखेंगे आप प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ रिएक्टेंट ये है और प्रोडक्ट ये है, इनमें भी ध्यान रखना है कि जो आयंस होंगे उसी को रखेंगे, जो सॉलिड होंगे उनकी कंसंट्रेशन को यूनिट कंसिडर करके उनको छोड़ देंगे, ठीक है ना।
तो वो फार्मूला फिर चेंज हो जाएगा। और एक बात और, अगर मैं प्लस की जगह माइनस साइन यूज में लेता हूँ तो ये जो आपके पास सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखते हैं एक सिंपल सी रिएक्शन जिसको नर्स्ट इक्वेशन में लिखना है हमें, ठीक है। तो नर्स्ट इक्वेशन में लिखने के लिए जैसा हमने बताया, हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ई सेल, इस रिएक्शन के लिए देख रहे हैं ई नॉट सेल, देन प्लस, देन 0.059 अपॉन एन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। तो आप यहाँ देख लें, कैलकुलेट कर लें कि देखो एक Al जो है 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहा है, 2 से मल्टीप्लाई है, दैट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब उसके बाद आपको लिखना है लॉग, और लॉग के बाद रिएक्टेंट के आयंस, रिएक्टेंट और फिर प्रोडक्ट। तो देखो रिएक्टेंट क्या है आपके पास, लॉग लिखने के बाद रिएक्टेंट आपके पास में है Al, ठीक है, Al। अब एक और चीज ध्यान रखें, इनके जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको आपने पावर्स में लगाया है, तो Al का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2। सिमिलरली आप देखो Fe का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, Fe 3 प्लस आयन का स्टाइक्योमेट्रिक, 2 प्लस आयन का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो 3 है, डिवाइडेड बाय नीचे प्रोडक्ट का लिखना है आपको, तो अगेन Al, और Al 3 प्लस है आयन यहाँ पर, Al 3 प्लस आयन और पावर 2, और यहाँ Fe और पावर 3। अब आप बता सकते हैं किसको कैंसिल करना है मुझे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सॉलिड स्टेट में है जैसे Al, ओके, और Fe जो सॉलिड स्टेट में, उनकी कंसंट्रेशन को यूनिट रखना है आपको, उनको छोड़ दें आप। अब आपके पास फॉर्मूला क्या बना, तो फॉर्मूला आपके पास ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल प्लस 0 अपॉन 6 लॉग, और आयंस क्या है आपके पास, एक तो है Fe 2 प्लस आयन पावर 3, एंड सेकेंड आपके पास में Al 3 प्लस आयन एंड पावर 2। तो दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट cell potential using this equation and using the concentration if it is given, okay। तो नर्स्ट इक्वेशन आपको क्लियर हो गई है कि किस तरह से नर्स्ट इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन के लिए हम नर्स्ट इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इससे कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे हम, जो हम सॉल्व करेंगे कि न्यूमेरिकल्स किस तरह से पूछे जाते हैं और उन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाए, ओके। Yes students, let's do some numericals। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपको दिया गया है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ pH 10। अब इस न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ये है कि हमें pH की वैल्यू गिवन है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन दी हुई नहीं है, और इस तरह की न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कंसंट्रेशन चाहिए उस सॉल्यूशन की जिसमें इलेक्ट्रॉन आपने डिप किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा पहला काम है कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड करना। देखिए इफ pH वैल्यू, सॉल्यूशन देख रहे हो, इफ द pH इज 10, अगर pH की वैल्यू 10 है तो इन दैट केस हम कह सकते हैं कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो है वो 10⁻⁻10 होगी। ये pH में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि अगर आपके पास में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन में जो रेस्ट टू पावर होती है वो pH को एक्सप्रेस करती है, तो pH 10 है, दैट मीन्स यहाँ पर पावर भी -10 होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन है। अब हमारे पास जो फार्मूला है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने का हाइड्रोजन के लिए, दैट इज E H प्लस हाफ H2 गिव्स E नॉट H प्लस हाफ H2 प्लस then 0.059 upon n and log H plus ion concentration. This is the formula. Okay. अब इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैलकुलेट करने के लिए let's put the value. We have to find E H plus half H2 gives, अब हमें पता है हाइड्रोजन के लिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए H प्लस के लिए अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं स्टैंडर्डली, दैट इज 0.0 वोल्ट प्लस 0.059 अपॉन n। तो यहाँ पर देखिए इस केस में जब भी हाइड्रोजन से हम रिएक्शन करा रहे हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी अगर हम इसकी रिएक्शन कर रहे हैं H2 की फॉर्मेशन करता है ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। एक्चुअली ये रिएक्शन इस तरह से होती है
जैसे 2H प्लस आयन एंड गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट विल चेंज इनटू H2 गैसेस स्टेट। इस तरह से इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें ये आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, सॉरी कितने H2 के लिए है। अगर हम यहाँ बात करते हैं केवल एक H प्लस आयन की, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ एक लेते हैं तो फिर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ हाफ H2 लेंगे आप, ठीक है। तो इस क्योंकि हम H प्लस आयन ही ले रहे हैं यहाँ पर कंसंट्रेशन में, ठीक है, तो वहाँ पर आप फिर इसके लिए एक ही यूज में लें। N के लिए आप यहाँ वन यूज में लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब आगे देखिए आप लॉग और देन H प्लस की कंसंट्रेशन आपको यहाँ पुट करनी है, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है आपके पास 10 रेज़ टू पावर -10, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 0.0 तो कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स यही बचा है आपके पास 0.059। अब आप यहाँ पर देखिए जब -10, इसके एक फॉर्मूला आता है इसके लिए, और ये फॉर्मूला इस तरह से हो सकता है कि अगर आपके पास में log a रेज़ टू पावर n है तो इसको n log a लिखा जा सकता है, ठीक है। तो पावर आगे आ जाएगी तो यहाँ पर इसका -10 आगे आ जाना चाहिए। तो इसके बाद में यहाँ आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय -10, ठीक है, और log 10 की वैल्यू होती है आपके पास 1। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास अब वैल्यू क्या आनी चाहिए, देखिए तो आपके पास वैल्यू होनी चाहिए, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें आप तो आपके पास आ जाएगा -10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस में 0.59, ठीक है, वोल्ट। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। दिस विल बी द आंसर, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, मार्कर चेंज कर दें, नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ अ सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। आपको सेल का ईएमएफ फाइंड करना है जिसमें आपको ये रिएक्शन दी गई है, ठीक है। तो देखिए ईएमएफ फाइंड करने के लिए हमारे पास में जो फार्मूला है दैट इज ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल प्लस देन 0.059 अपॉन n लॉग। और उसमें हमने कहा था कि जो रिएक्टेंट के आयंस होते हैं वो ऊपर आएंगे और प्रोडक्ट के आयंस जो है वो नीचे आएंगे। तो रिएक्टेंट के आयन थे आपके पास Ag प्लस, इसके लिए अगर मैं नर्स इक्वेशन बनाता हूँ तो देखो 2 है यहाँ पर, तो पावर 2 लगाएंगे आप। सिमिलरली अब अगर प्रोडक्ट के आयंस देखते हैं तो प्रोडक्ट में Ni2 प्लस है, ये यहाँ पर लिखेंगे आप, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया है। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको, तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी 1.05 प्लस अब यहाँ n की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ पर, देखिए 2Ag प्लस है जो 2Ag में कन्वर्ट हो गया है आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो मैं यहाँ 2 लगा सकता हूँ, ठीक है। तो इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो आपको जो वैल्यू मिलेगी 0.0295, ओके। देन लॉग और इसकी वैल्यू और पुट कर दें, Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन है आपके पास 0.002 स्क्वायर अपॉन, और निकल आयन की कंसंट्रेशन है आपके पास में 0.160, कुछ भी नहीं है बस इतना ही है, तो 0 आप यहाँ हटा सकते हैं बाद में, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, ओके। इसको सॉल्व करना है आपको। अब इसे सॉल्व करने के लिए ई सेल इक्वल्स टू 1.05 प्लस 0.0295 लॉग और इसे सॉल्व करें। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए अगर मैं 0.002 रेज़ टू पावर 2 को सॉल्व करता हूँ या इसके स्क्वायर लेता हूँ तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.00004 डिवाइडेड बाय 0.16, इस तरह से लिखा जाएगा इसे। चलिए आगे से कैलकुलेट करें। अब देखिए यहाँ पर ई सेल इक्वल्स टू 1.05 प्लस 0.0295 देन लॉग, और इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा 4 × 10⁻⁻⁶, ठीक है ना। पॉइंट को आप शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पर 6 डिजिट राइट में, देन यू हैव 16 × 10⁻², ओके। आगे सॉल्व करें, देन ई सेल इक्वल्स टू 1.05 प्लस 0.0295 देन लॉग, इसे क्या लिख सकते हैं आप, इसको सॉल्व करके आप लिख सकते हैं, इसको कैंसिल कर दें 4 टाइम्स, तो अब आपके पास आ जाएगा 10⁻⁻⁶
अपॉन, और नीचे बच जाएगा आपके पास में 2⁻²। अच्छा 6 को भी देखो -2 को ऊपर ले जाएं तो यहाँ कितना बच जाएगा -4, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 4 को अपन क्या लिख सकते हैं 2⁻²। आगे सॉल्व करें इसे, तो ई सेल इक्वल्स टू 1.05 सॉरी प्लस 0.0295 देन लॉग, अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आ रहा है कि log a अपॉन बी इक्वल्स टू log a माइनस log b, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर -4 को आगे ले लें, पावर की पावर जो आगे आ जाएगी -4 log 10 देन -2 log 2, इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 log 2। अब सॉल्व करें तो ई सेल इक्वल्स टू 1.05 प्लस 0.0295, आगे से सॉल्व करने पर आपके पास आ जाएगा -4 क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है, देन -2 इंटू 0.3010, log 2 की वैल्यू होती है 3010। आगे सॉल्व करें ई सेल इक्वल्स टू 1.05 प्लस 0.0295 देन -4, इन दोनों को कैलकुलेट कर लें तो यू विल गेट 0.6020, ओके। तो ई सेल इक्वल्स टू 1.05 प्लस 0.0295 और माइनस माइनस प्लस इनको ऐड कर लेंगे आप तो आएगा आपके पास 4.6020, और इन्हें अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास अप्रॉक्स जो वैल्यू आएगी इनको मल्टीप्लाई करने पर दैट विल बी 0.14, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिए मैंने क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भी 2 डिजिट है, तो ई सेल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इसको सब्ट्रैक्ट करके देखें आप कि 1.05 में आप सब्ट्रैक्ट कर लें 0.14 तो नाउ यू हैव 1 और या 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.91 वोल्ट, ठीक है। दिस विल बी द आंसर। तो इस तरह से यहाँ आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम केवल एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए भी पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं और पूरे सेल के लिए भी ईएमएफ या सेल पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के और न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस करेंगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट वेरी इजीली, ओके। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, ओके।